Good morning, students. Today we are going to study about this page. This is the page of your NCERT book. So we are going to study about it, that what is atomic mass. Students, in our previous videos we have already studied about the atoms, that atoms are the smallest particle of a substance which is capable which may or may not have independent existence, that is called as atom. And then a molecule, the smallest particle of a substance which is capable of independent existence, is called as a molecule. Atom maybe exist independently or maybe not, like in hydrogen, atom is not existing independently, the two atoms are existing together, so here the existence is not independent. So at some places the existence is independent, in some places it is not. But in molecules, the molecules are capable of independent existence always. We have two types of molecules: homoatomic molecules and heteroatomic molecules. From the name itself, it is very much clear that homoatomic molecules are the molecules which are made up of the atoms of same element, like hydrogen, chlorine. In H2, both the atoms will be of H only. In Cl2, both the atoms will be of chlorine only. N2, oxygen. So many atoms, so many molecules we are having, those are homoatomic. Then heteroatomic molecules are the molecules which are made up of more than one kind of atoms. Like in water, we are having the atom of hydrogen also, and we have the atom of oxygen also. In ammonia, we have the atom of nitrogen, and same time we have the atom of hydrogen. So these are heteroatomic molecules. So about it, you people all know, you people have studied about it. The main topic which we are going to start today is atomic mass. What is atomic mass? See, students, in I'm talking about the time before 100 or 200 years back. I'm talking about, at that time we were not having very minute or very sophisticated or very peculiar devices. So I'm talking about that time. See, atomic mass is a very important unit. Atomic mass means the mass of one atom. So atom, we know, is a very small part thing, and it's very difficult to measure the mass of one single atom. But chemists will require the mass of one atom for many purposes. They do some experiments, they do many chemicals, they form many chemicals, they manufacture many other fertilizers, and so many things they were doing. For that, the atomic mass was really required by them. So what they have done then, so because atomic mass was measuring atomic mass was very important, but we were not having the peculiar devices. So what we have done, we have done some arrangement, we have done some jugaad. What was that? For explaining you that better, first I will give you the example of physics. See, in physics also, if I'll say you what is 1 kilogram, so you will say, ma'am, kilogram is a mass, a unit which we use to measure the mass. So then I will ask, from where it kilogram has come. कहाँ से आया ये? शुरू से तो नहीं होगा ना किलोग्राम की. This is the kilogram. So in physics also, the people have done some arrangement, some technique they have applied. What maybe they have done, suppose this is a cylinder, okay. So उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने suppose कर लिया होगा, they have let it that this is a cylinder and mass of this cylinder is whatever. We are not aware about that what is the mass of the cylinder, but we are going to compare all the things with the help of this cylinder. Now suppose we have to measure the mass of this box. So on one side we will keep the box, and another side we will start keeping the cylinders. One cylinder, two cylinder, three cylinder. So one by one we were keeping the cylinders, and the balance was coming in between, and ultimately when we have kept 20 cylinders here, the balance was in between. The needle of the balance was in between, which shows the balance on both the sides is equal. It means the weight of this box is equal to the weight of 20 cylinders. So what we have said, the weight of this box is 20 cylinders. The same way now, whenever we want to measure anything, तो अब हमारे पास एक particular thing, एक चीज़ हमारे पास आ गई थी. विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन मेजर द मास. अब हमें मान लो
अपना मास मेजर करना है, कितना मास है. सो वी विल सिट हियर एंड वी विल स्टार्ट कीपिंग सिलेंडर्स ओवर हियर. मान लीजिए 50 सिलेंडर्स रखने पड़ रहे हैं या 60 सिलेंडर्स रखने पड़ रहे हैं. सो दैट विल बी द वेट. लाइक माई वेट इज़ सपोज 55 सिलेंडर्स, योर वेट इज़ लाइक 50 सिलेंडर्स और 45 सिलेंडर्स और 60 सिलेंडर्स. अब धीरे धीरे लगा कि ये सिलेंडर बार बार जो है अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में. व्हाट यू मीन बाय सिलेंडर. सो वी शुड गिव अ पर्टिकुलर नेम टू दिस सिलेंडर, वी शुड गिव अ पर्टिकुलर मेजरमेंट टू दिस. तो हमने बोल दिया कि इस सिलेंडर का जो मास है दैट इज़ 1 kg. नाउ kg इज़ द यूनिट विच वी आर गोइंग टू यूज़. अब हम डायरेक्टली हम इसको इससे रिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा. द मास ऑफ दिस बॉक्स विल बी 20 kg. Instead of 20 cylinders, what we are saying now, 20 kg. My mass is not 55 cylinders, now it is 55 kg. The same way now we can measure the mass of anything. तो ऐसा ही कुछ we have done in chemistry also. In chemistry also we have relate the mass of the atom with something. We have started this, the scientists actually, not we or means I and you, the scientists, what they have done, they have compared the mass with the mass of hydrogen. Firstly they have started with the hydrogen and later on they start comparing with the oxygen. But ultimately जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, in 1961 the International Unit of Chemists selected a new term, a new unit for expressing the atomic mass, and this was what, this was carbon 12. Carbon 12 we have selected as a standard atom, and what we have said that we will compare the mass of all the elements with carbon 12. Why I am saying carbon 12, because you people know that carbon have isotopes. So here we are talking about the carbon which is having the mass of 12. उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, because we have carbon 14 also. So we have taken carbon 12 and what we have said that whatever will be the mass of carbon 12, we were not aware what is the mass of one carbon atom, but we have supposed that whatever will be the mass of one carbon atom, the 12th of one of that mass will be our unit. हम उससे compare करेंगे. Now suppose now we want the mass of one nitrogen atom. So what we have done, we have start comparing with this mass. So we came to know that when we multiply this mass, the mass of one carbon atoms upon 12 by 14, then we get the mass of nitrogen atom. Means we have हमने relate किया, ये exact mass नहीं निकल रहा था. So we have related the mass of 1/12 of the mass of one carbon atom with the 14 atoms of nitrogen. तो 14 से जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास इसका मास आ गया. सो दैट इज़ वाई वी से दिस रिलेटिव मास. हम इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास. द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम of an element as compared to the mass of an atom of carbon 12 is called as the atomic mass. Atomic mass हमने क्या बोला कि average relative mass, किसी भी एटम का वो रिलेटिव मास जो कार्बन 12 के 1/12 से रिलेट करने पर हमें मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एटमिक मास. तो अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया. हमें किसी भी एटम का मास चाहिए तो हमने क्या कर लिया, ऑक्सीजन का मास चाहिए तो कंपेयर किया एंड वी केम टू नो कि व्हेन वी मल्टीप्लाई 16 बाय द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, सो दिस इज़ द मास ऑफ ऑक्सीजन. सोडियम का हमने करा तो हमें 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. सो द मास ऑफ सोडियम एटम इज़ 23 इंटू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम. ऐसे अब हम सबका मास निकालने लगे. बट यू नो बार बार राइटिंग दैट what is the mass of oxygen atom, 16th of 1/12 of the mass of carbon 12 atom. What is the mass of sodium atom, 23rd of 1/12 of the mass of carbon atom. So this is becoming very big or very poor by saying again and again this 1/12 of the mass of one carbon atom. तो साइंटिस्ट ने कहा यार इतना टाइम नहीं है हमारी लाइफ में, बहुत बिजी लोग हैं हम, हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं, कहाँ इतना बड़ा बड़ा कौन बोलेगा इसको कोई शॉर्ट टर्म दो भाई. तो इसको शॉर्ट टर्म दे दिया हमने AMU. AMU स्टैंड्स फॉर एटमिक मास यूनिट, कि हमने एटम को मेजर करने के लिए जो मास यूनिट बनाई है दैट इज़ कॉल्ड एज AMU. अब हमारे लिए इजी हो गया. मास ऑफ वन एटम 16 AMU, मास ऑफ सोडियम एटम 23 AMU, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 AMU. और इस तरीके से हमारा जो काम है वो चलना शुरू हो गया. एज आई टोल्ड यू, क्या है ये हमारे पास, रिलेटिव एटमिक मास. So atomic mass is a number which tells that how many times an atom of an
element is heavier than 1/12 of the mass of one carbon 12 atom. We are relating the mass of our atom and the mass of the 1/12 of the mass of one carbon atom. That is why it is called as relative atomic mass. जैसे मैंने आपको बताया, पहले हमने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था, बट देन वी स्टिक ऑन द 1/12 of the mass of the carbon 12, one atom of carbon 12. तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव एटमिक मास. अब सोडियम का रिलेटिव एटमिक मास हमारे पास 23 mu आ गया, ऑक्सीजन का 16 आ गया, नाइट्रोजन का 14 mu आ गया. इस तरीके से हमारे पास मासेस आना शुरू हो गए. ऐसे हमारा काम चलता रहा. बट देन स्लोली व्हेन टाइम चेंज्ड, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और एक टाइम आया जब हमारे पास अब पिक्यूलियर डिवाइस है, जब हमने स्पेक्ट्रोमीटर का इन्वेंशन कर लिया था. स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास भी मेजर किया जा सकता है. तो अभी तक तो हम AMU लिख रहे थे, मीन्स एटमिक मास यूनिट, जो कि हमारी क्या थी, एटमिक AMU किसके बराबर था. 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. लेकिन अब हमने क्या किया, कार्बन 12 का मास हमने निकाल लिया. कार्बन 12 के मास को हमने निकाल लिया. जब कार्बन 12 का मास हमारे पास आ गया तो उसे जब हमने 12 से डिवाइड करा तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 AMU, बिकॉज 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम. तो स्पेक्ट्रोमीटर से व्हेन वी हैव मेजर्ड द मास ऑफ वन कार्बन एटम, तो वो हमारे पास आ गया था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स में आ गया अब हमारे पास मास. ठीक है. अब जब ग्राम्स में हमारे पास 1.99 इंटू 10⁻⁻23 आ गया, तो हमें तो क्या चाहिए, इसका 1/12 चाहिए. तो उसे 12 से हमने डिवाइड किया और हमारे पास जो यूनिट आई दैट इज़ 1.66 इंटू 10⁻24. तो अब ये हमारे पास आ गया. इट मीन्स 1 AMU इन ग्राम्स इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24. स्टूडेंट्स, इसी टर्म को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो सॉरी एवोगैड्रो नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो भी हमारे पास यही नंबर आ जाता है. तो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 as well as 1 AMU is equal to 1 upon NA. NA stands for Avogadro number. You people know about it. एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 6.023 इंटू 10⁻23. आप करके देखना. 1/6.023 इंटू 10⁻23 इज ऑल्सो इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24. तो 1 AMU इज इक्वल टू दिस ऑल्सो एंड 1 AMU इज इक्वल टू दिस ऑल्सो. अब हमें सपोज क्या चाहिए, अब हमें मास ऑफ ऑक्सीजन एटम चाहिए इन हम जानते हैं ऑलरेडी, हमने कैलकुलेट किया हुआ है, मेजर किया हुआ है, कंपेयर करके हमने वी हैव कैलकुलेटेड द रिलेटिव एटमिक मास एंड दैट वी नो इज़ 16 AMU. एंड नाउ एज वी नो द value of AMU also, we know that 1 AMU is equal to 1.66 into 10⁻⁻24 or it is equal to 1 upon Avogadro's number. So what we will do, we will multiply 16 into 1.66 into 10⁻⁻24. तो whatever will become that will be the mass of one oxygen atom. तो अब हमारे पास बहुत easy हो गया, बहुत हमने आसान तरीके से, बहुत एक्यूरेटली हमने मास निकालने शुरू कर दिए. ठीक है. अब हम बात करते हैं मोलर मास की. ठीक है. मोलर मास क्या है, मोलर मीन्स मोल. यू पीपल नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻⁻23. आपने पढ़ा है ये 9th में या 10th में, यू हैव स्टडीड अबाउट इट. बाकी मोल के बारे में वी विल स्टडी इन डिटेल ऑल्सो, वो हम बाद में पढ़ेंगे. बट फिलहाल हम बात करते हैं 1 मोल. 1 मोल मीन्स 1 मोल इज़ अ क्वांटिटी. व्हेन आई एम सेइंग 1 मोल, तो 1 मोल कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी एटम ऑल्सो, इट कैन बी मॉलिक्यूल ऑल्सो, इट कैन बी आयन्स ऑल्सो. लाइक मैं बोलूँ 1 डजन, तो यू विल से मैम 1 डजन वॉट, 1 डजन बनाना, 1 डजन ऑरेंज और वॉट. 1 डजन इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ इक्वल टू 12. Same way 1 mole is a quantity, or you can say a unit which is equal to 6.023 into 10⁻23. तो हम किसी भी चीज़ की बात करें, वी आर सेइंग 1 mole atoms, it means 6.023 into 10⁻23 atoms. If I am saying 1 mole molecules, so it means 6.023 into 10⁻23 molecules. If I am saying 1 mole ions, it means 6.023 into 10⁻23 ions. And 1 mole is also equivalent to
Avogadro number, because Avogadro number is what, 6.023 into 10 to the power 23. It means 1 mole is equivalent to 6.023 into 10 to the power 23 or particles or Avogadro's number. Now what is molar mass? Obviously when I'm saying atomic mass, that is the mass of one atom, and when I'm saying molar mass, it means the mass of 1 mole of substance. एज आई हैव टोल्ड यू वन मोल कुछ भी हो सकता है, 1 मोल एटम्स भी हो सकते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, 1 मोल आयंस भी हो सकते हैं. बट व्हेन आई एम सेइंग 1 मोल का मुझे मास चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मोलर मास. सो व्हेन आई एम सेइंग मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, so it means the mass of 1 mole oxygen atom I want, and I have already calculated the mass of 1 atom of है ना. So when I will multiply the mass of 1 atom by 6.023 into 10 to the power 23, so I will get the molar mass of oxygen atom. So what I have said, that mass of one atom is equivalent to 16 AMU. But here when I am talking about molar mass, so it means I want the mass in grams. So I will change AMU in grams. तो AMU को अगर हमें ग्राम्स में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें AMU का जो यूनिट है, जो वैल्यू है, दैट इज़ 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बट एज आई हैव टोल्ड यू कि 1 AMU इज़ ऑल्सो इक्वलेंट टू 1/Na, है ना. तो हम यहाँ पे वही वाले यूनिट यूज़ करेंगे. 16 इंटू, अब हमें क्या चाहिए, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम. So we will multiply the mass of 1 atom into 1 mole, that is Avogadro's number, and mass of 1 mole in grams is 16 into 1 by Na. 1 by Na हमने क्यों किया है, इस AMU को ग्राम्स में चेंज करने के लिए. and this is the mass of 1 mole, 1 atom sorry of oxygen, कितना, 16 into 1 by Na. और हमें तो कितना चाहिए, 1 मोल का. सो वी विल मल्टीप्लाई बाय इट 1 मोल, दैट इज़ अगेन एवोगैड्रो नंबर. तो एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर कट गया, Na से Na कट गया, और हमारे पास क्या बच गया, 16. नाउ दिस 16 इज़ नो मोर AMU, इट इज़ नाउ ग्राम, बिकॉज वी हैव चेंज इट इन ग्राम्स. हमने इसे 1/Na से मल्टीप्लाई करके ग्राम्स में चेंज कर लिया था. तो नाउ दिस इज 16 ग्राम. तो वॉट यू हैव सीन स्टूडेंट्स हियर, that the mass of one atom is 16 AMU and the mass of 1 mole of oxygen atom is 16 grams. 1 atom का मास ऑक्सीजन का कितना है, 16 AMU, और 1 मोल का कितना है, 16 grams. So it means molar mass and atomic mass is the number, the quantity is same, but only the units are different. So we can say that molar mass is what, it is actually gram atomic mass. जब हमने एटमिक मास को ग्राम्स में चेंज कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, मोलर मास. सो इट मीन्स मोलर मास और ग्राम एटमिक मास जो है हमारा, दोनों चीज़ें, दोनों बातें सेम ही है. अगर हम लिख रहे हैं ऑक्सीजन का मास 16 AMU, सो इट मीन्स दिस इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. एंड इफ आई एम राइटिंग 16 ग्राम, इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. सो इन दिस वे वी कैन से दैट नाइट्रोजन का भी, अगर 1 एटम का मास 14 AMU होता है, तो द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ 14 grams. द मोलर मास ऑफ सल्फर इज़ 32 grams. द मोलर मास ऑफ सोडियम इज़ 23 ग्राम. तो अब हमारे पास ये मोलर मास आ जाता है. सो मोलर मास इज़ व्हाट, इट इज़ ग्राम एटमिक मास, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na, एवोगैड्रो नंबर. जैसे मैंने आपको बताया 16 AMU हमारे पास 1 एटम का मास आ गया था, और 16 इंटू 1/Na इंटू Na से हमारे पास क्या आ गया, 16 ग्राम्स आ गया. ठीक. अब हम बात करते हैं एवरेज एटमिक मास की. स्टूडेंट्स, यू नो दैट एटम्स एग्जिस्ट नेचुरली एज डिफरेंट आइसोटोप्स ऑल्सो. बहुत सारे हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, दोज हैव आइसोटोप्स, लाइक क्लोरीन. क्लोरीन एग्जिस्ट एज बोथ इन बोथ फॉर्म्स, इन क्लोरीन 35 ऑल्सो, इन क्लोरीन 37 ऑल्सो. सो अब हम यहाँ पर बहुत सारे, बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स एट वन टाइम, तो अब हम क्लोरीन के मास को, जो क्लोरीन का मास है, सिर्फ उसे ही यहाँ पर एटमिक मास नहीं कह सकते व्हेन डीलिंग विद क्लोरीन, बिकॉज वी हैव अ मिक्सचर ऑफ दीज आइसोटोप्स. द क्लोरीन विच वी आर गेटिंग, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 आइसोटोप्स. सो टू वर्क विद दिस इन टर्म्स ऑफ मास, हम सिर्फ मास ऑफ क्लोरीन 35 या मास ऑफ क्लोरीन 37 को कंसिडर नहीं कर सकते, बल्कि हमें इन दोनों के मास को कंसिडर करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द एवरेज मास. मतलब 2 डिफरेंट यूनिट्स आर ऑफन यूज विद एटमिक मास. एटमिक मास हमारे पास क्या है, AMU में आ चुका है ऑलरेडी, हमें पता है. और क्लोरीन का हमने जो एटमिक मास निकाला है, दैट इज़ 35.4 AMU. क्लियर. तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका एवरेज एटमिक मास निकालना है.
एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें दोनों क्लोरीन्स को कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे अभी अब तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ हीलियम एटम, 1 मोल ऑफ आयरन एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, इनका मास ये है 4.023 ग्राम्स। आयरन की बात करें तो 55.8 है, सोडियम की बात करें तो 22.99 है। लेकिन क्लोरीन हमारे पास दो फॉर्म्स में प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, क्लोरीन 35 का मास ले लिया। सपोज क्लोरीन 35 का जो मास है दैट इज़ 34.9 और क्लोरीन 37 का जो मास है दैट इज़ 36.9। तो अब हमें क्या देखना है, इनकी एबेंडेंस, मतलब एटमॉस्फेयर में कितना क्लोरीन, तो क्लोरीन 35 की फॉर्म में प्रेजेंट है और कितना क्लोरीन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन 37। तो अब हमें इनकी परसेंटेज भी मिल गई। तो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बोथ दीज टर्म्स। हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज निकालना बता रही हूँ मैं आपको, हाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके मास को और इसकी परसेंटेज एबेंडेंस को, क्लोरीन 35 की भी और क्लोरीन 37 की भी, और उन दोनों को हमने कर दिया प्लस। और प्लस करके बिकॉज एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी विल डिवाइड बाय 2। तो अब हमारे पास इसका मास जो है आ चुका है। नाउ दिस इज व्हाट मास, दिस इज द एवरेज मास दैट इज 35.45। अब क्लोरीन का जो भी हम मास कंसीडर करेंगे वो एवरेज करेंगे। मतलब क्या है कि जो चीज़ें आइसोटोप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं उनका हमने जो जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सब की जितनी भी परसेंटेज नेचर में प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई करके आपस में उन्हें प्लस करके जितने भी आइसोटोप हैं उस नंबर से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो मास आया दैट इज़ एवरेज मास एंड वी आर गोइंग टू यूज़ दिस मास एज द मास ऑफ क्लोरीन। ऐसे ही अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन के भी हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं यहाँ पर, उन दोनों के मास हैं, उन दोनों की परसेंटेज है। तो अगर अब हमें कार्बन का एवरेज मास निकालना है तो क्या करेंगे, मास और एबेंडेंस को मल्टीप्लाई, मास और एबेंडेंस को मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। इसी तरीके से यू कैन कैलकुलेट द एवरेज मास ऑफ मैग्नीशियम, द एवरेज मास ऑफ पोटेशियम। स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू डू दीज क्वेश्चंस बाय योर ओन, ठीक है। तो इस यूनिट में हमने क्या पढ़ा, वी हैव स्टडीड अबाउट एटॉमिक मास। Atomic mass is actually the relative atomic mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon 12 taken as 12. And the unit of this is AMU. 1 AMU is equivalent to 1.66 into 10 to the power minus 24 grams, or 1 upon Avogadro's number, 1 upon Na. And after that I have explained you about the molar mass. Molar mass means the mass of 1 mole of atoms, that is also called as gram atomic mass. The quantity of atomic mass and molar mass or gram atomic mass is same, but only the units are different. If I am using the unit of AMU, it means I am talking about the mass of one atom, and if I am using the unit gram, it means I am talking about the 1 mole of that particular atoms, that particular elements. Okay, so in next video I will explain you about molecular masses. Here we have studied about atomic masses. In next we will study about molecular masses. Thank you.